And let us continue with the topic of current electricity. I know, sir, बहुत time हो गया है, sir. As I told you guys before, by the way, the 15th of August, you would be completing more than around 5 and 6 chapters. Trust me. This would be our third topic, so there are 3 more topics which we need to complete. For state board, of course, guys, it's going to be 4 topics. For CBSE, we are going to complete magnetic effect of electric current, magnetism, and the EMI and AC. So that would be completed before our national flag is going to be unfurled. And for state, it's going to be one. I'll try to complete 2 chapters, and that would be the rotational motion as well. Okay. Now, without wasting time, let us complete this particular topic up. And tomorrow, of course, there's going to be a new topic. So, potentiometer. Now, first of all, what do you mean by the word potentiometer? Guys, एक एक करके जो term आती जा रही है, ध्यान रखना. Galvanometer is a device which is used to measure current. Of course, it is used to measure very small amounts of current. It will give you a full scale deflection, of course. On the other hand, while I am talking about potentiometer, it is a device used to measure the EMF, okay, EMF of a circuit, and also it is used to measure potential difference across a circuit. So आपको इस टॉपिक के बाद में एक्चुअली में समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है. ओके, ध्यान रखना है बस केवल 1 या 2 लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू रिमेंबर ओम्स लॉ व्हिच सेज दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. Okay, and also then we know that R is known as resistance, unit is ohm, and R depends on these 3 factors, which will give you the formula of R is equals to rho L upon A. What is rho? That is resistivity. अब बढ़ते हैं आगे. Potentiometer. So what is a potentiometer? A potentiometer is a device used to measure EMF, which is known as electromotive force or potential difference across 2 ends of a wire. Guys, this is very to the infinity important topic. बहुत important topic है. So please miss मत करना. Slide wire bridge और potentiometer में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. You would be able to find one question based on this even in JEE mains, and also you would be able to find at least 1 and 2 questions, based on these topics on the NEET or in the NEET. Okay. So what is the principle? तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन. ये वाइवा के अंदर भी पूछते हैं, को सबको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे. What do you mean by the word principle? पहली चीज ध्यान रखना गाइस, प्लीज, प्रिंसिपल की स्पेलिंग इज PRINCIPLE. वो जो PAL होता है, that's a different principle. That principle, sir और मैडम, is, समझ जाओ, pretty dangerous. Though they are very strict, okay, and they ought to be very strict. Anyway, principle. So coming back onto the word principle, what is the principle behind the potentiometer? A wire carrying, or in simple words, if a wire is carrying a steady current, I'll tell you each and every word, don't worry. If a wire is carrying a steady current, then the fall of potential across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion of the wire. कुछ समझ में नहीं आया होगा, तोते उड़ गए होंगे. डोंट वरी, हम इसको लेवल पे लेकर के आते हैं. If somebody says what is the principle of potentiometer, then according to the principle of the potentiometer, if a wire is carrying a steady current, then fall of potential, which is also known as potential gradient, उसे बाद में आते हैं, then fall of potential across any length of the wire or across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire. अब इसका मतलब क्या हुआ? First part is, सपोज करो यदि आपके पास में, मुझे नहीं मालूम कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो हम बेसिक से बात करते हैं. तो ये बोल रहे कोई भी एक वायर है, उस वायर में एक स्टेडी करंट है. अब स्टेडी करंट के लिए आपको या तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी लगानी पड़ेगी, और वो इतनी बड़ी बैटरी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत यदि इधर उधर हो भी गया तो भी ये मेंटेन कर ले. ओके, ये हो गया स्टेडी करंट. तो उस पर्टिकुलर बैटरी ने आपको एक स्टेडी करंट देते जा रहे हैं. अब ये बोल रहे हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर. यदि इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस तो होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि वायर में रेजिस्टेंस होता है.
इफ वायर में रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब है पोटेंशियल तो फॉल करेगा ही करेगा, बिकॉज करंट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, राइट? इफ द पोटेंशियल इज गोइंग टू फॉल, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कुछ याद आ रहा है? dv by dr v upon l, right? Like that. So that means that the fall of potential, वो कितना पोटेंशियल फॉल करेगा वो केवल इस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो वायर लिया है जिसमें आपको चेक करना है कि इसमें कितना पोटेंशियल कम हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो इस पर डिपेंड करेगा कि इस वायर का लेंथ कितना था। इसका मतलब यदि आपने वायर सपोज करो इतने लेंथ का लिया तो पोटेंशियल कुछ x कम होगा मान लो, और यदि आपने इतना लिया तो इसका मतलब पोटेंशियल इस पे ज्यादा फॉल करेगा, और बड़ा लोगे तो और ज्यादा फॉल करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now this gives you an idea that if you want to increase the sensitivity of the potentiometer, यदि आपको पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है या पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है कि वो बहुत अच्छी रीडिंग्स ले, तो क्या लगता है वायर लंबा होना चाहिए या छोटा? कॉमन सेंस, वायर को जितना लंबा करोगे उतना अच्छा पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग देगा। ओके, सो दिस इज पोटेंशियोमीटर। ऑफ कोर्स अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आई विल एक्सप्लेन यू, देन आपको क्लियरली आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे पहले तो बेसिक एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर ओवर एनी अदर गैजेट, फॉर एग्जांपल द मूविंग कॉइल, आप यदि कोई भी आप वोल्टमीटर यूज कर रहे हो या आप वोल्टमीटर यूज कर रहे हो, बाकी सब में कुछ ना कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस वाला पार्ट नहीं होगा, या इन सिंपल वर्ड्स ये इसको आपको ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज टेक्निकली कंसिडर्ड एज अ वोल्टमीटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अ पोटेंशियोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टमीटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ओके, सो अभी तक आपको दो चीजें तो समझ में आ गई होंगी, भले ही पोटेंशियोमीटर नहीं आया हो। फर्स्ट, दैट जितना लंबा आप वायर लोगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है पोटेंशियोमीटर की। सेकेंड, आपको ये और समझ में आ गया होगा दैट जितना आप लंबा या छोटा वायर लोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आता रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल कम होता रहेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो प्रिंसिपल ध्यान रखना, द पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एंड देन कम्स द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर गाइस इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस, यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस, यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक n नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेलल ब्रांचेस को कनेक्ट कर दो, जो मर्जी आप बना सकते हो, दैट इज योर चॉइस। So I have just made a simple diagram like this. There is this E, which is known as the source, and this is also known as driver battery. ये काफी हाई पोटेंशियल के होते हैं। So E है यहाँ पर, इसका कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, R आप चाहो तो एक और रेजिस्टेंस लगा दो जहाँ मर्जी है। आपको जिस जगह पर पोटेंशियल मेजर करना है, that is going to be between A and C, and the A, ये पूरा का पूरा जो वायर है ये वो बहुत बड़ा वायर है। So it's a very lengthy wire. Now why is the wire of potentiometer very lengthy? To increase the sensitivity and hence the accuracy of potentiometer. So AB जो वायर है उसका मैंने एक बहुत छोटा सा सेक्शन लिया है which is AC, और इस AC की जो लेंथ है that is small l, और जो AB की जो पूरी की पूरी लेंथ है that is capital L. Okay, आगे बढ़ते हैं। This wire. Now, what is the unit of potential gradient? इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, potential gradient. Now what do you mean by potential gradient? Potential gradient means fall in potential. Okay, so the unit is volt per meter. This is the unit of potential gradient. Okay, now ये आपने लिया यहाँ पर। Now how will we work it out, guys? It's very simple derivation. There is actually no derivation at all. You know that R is equals to rho L upon A. ये कहाँ से आया? R is known as resistance, rho is known as resistivity, L is known as the length of the wire, and A is known as the area of cross section of the wire. V equals to IR, as I told you, that is Ohm's law. Okay, now V equals to IR, then can I put R के जगह पर ये वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया I rho L upon A. V equals to I, R की जगह पर rho L upon A.
इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। नाउ मैंने L को जानबूझ करके इसके डिनोमिनेटर में लेकर के आ गया, सो मैंने लिखा V by L। दिस V by L इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम एक सिंबल से शो करते हैं विच इज स्मॉल k। आप कैपिटल K बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो V upon L शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल k और कैपिटल K, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू I रो बाय A। ये कहां से आया? मैंने I को यहीं छोड़ दिया, रो को यहीं छोड़ दिया, A को यहीं छोड़ दिया, L को इस V से डिवाइड कर दिया। सो इसका मतलब है दिस पार्ट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, करंट इन अ सर्किट विल रिमेन कांस्टेंट, ऑफ कोर्स बिकॉज आपने ड्राइवर बैटरी लगाई है। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट प्रॉपर्टी, और एरिया ध्यान रखना इसके अंदर जो वायर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। वायर कहीं से ऐसे मोटा पतला पतला मोटा नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स दैट यदि ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, सो V upon L will also remain constant in a wire. That means very important point, that potential gradient in any wire will always remain constant irrespective of what? Its length. इसका मतलब है यदि 1 मीटर के लिए मान लो कुछ कम हो रहा है, सपोज कर लो गाइस मैंने 1 वोल्ट एक वायर लिया, उसमें 1 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल दिया, ओके, एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज व्हाट? 1 मीटर। सो व्हाट डू यू थिंक इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? K की वैल्यू कितनी आएगी? देन K शुड बी इक्वल्स टू 1/4, और द आंसर इज 0.25 वोल्ट बाय मीटर। इसका मतलब हर मीटर के अंदर 0.25 वोल्ट ड्रॉप होता जाएगा आपके पास में। गॉट इट? सो दैट इज द केस। आया? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यदि आपका वायर 2 मीटर लंबा होगा तो कितना कम होना चालू हो जाएगा? 0.50। 3 मीटर होगा तो कितना कम हो जाएगा? 0.75। 4 मीटर होगा तो लाइक दिस। सो दिस वुड बी नोन एज व्हाट? द पोटेंशियल। सो ये आ चुका, तो V इक्वल्स टू मैंने IR यहीं पर ही लिखा था। अब ये तो हो गया एक तरीका डिफाइन करने के लिए, वेयर V by L इज नोन एज K एंड द यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। सो दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसको, या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी का एक और डेरिवेशन है करने का तरीका, तो इट्स नॉट अ डेरिवेशन इन जनरली। V इक्वल्स टू IR व्हिच इज नोन एज ओम्स लॉ। गाइस कैन आई पुट I की जगह पर E अपॉन R प्लस R? ये कहां से आया? याद करो, whenever a circuit will be having an external resistance and also the source would also be having an internal resistance, बैटरी का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो you know that V is equals to IR। तो I की जगह पर मैंने क्या रख दिया? V अपॉन R। V का मतलब E का मतलब EMF अपॉन R प्लस R इंटू R। ये भी हो गया। यदि आपको तब भी नहीं आया हो तो go back to the previous video and watch that video and you will be able to come to know that. So V should be equals to E upon R plus R into R, और V upon L। अब ये सर V upon L कहां से आ गया? Let's divide both the sides by L। सर क्यों डिवाइड कर रहे हो? You will come to know। V by L का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप। इट शुड बी इक्वल्स टू E upon R plus R into R upon N। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। So that means that V by L should be equals to what? K। जब सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो ये भी आ जाएगा। So either you do it by this or you do it by this, it's one and the same part. Okay, आगे बढ़ते हैं। Let's move on to the next part. Now ये तो सर समझ में आ गया कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चीज में EMF को चेक करेगा, और it is going to check the potential difference between two ends of a wire. It is also going to tell you certain other things. Let's understand. Greater the length of potentiometer, greater is the sensitivity. पहली बार ही मैंने आपको बोल दिया। Let's understand now how will you find the potential difference by potentiometer. अब पहले इसके steps बहुत ढंग से सुन लेना and then think about anything else. First of all, you have taken a part that is यहाँ पर G डाल देते हैं। So there is this wire AB, okay? Now AB के अंदर मैंने ऊपर देखो एक और एक सर्किट बोला है। इसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट। ड्राइवर सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट।
Now this particular battery should be far more greater than this battery E1. So ये जो आपका बैटरी है E, जो आपका सोर्स है E, this E has to be very 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 greater than E1. ध्यान रखना। इसीलिए ये क्या करेगी, ये करंट को पूरे टाइम मेंटेन करेगी। Now what is the working of this potentiometer? Very simple part. First of all, you are going to do what? You are going to close this key K1 and let this key K2 be open. आप इस K1 को बंद कर दोगे तो इसका मतलब है करंट जाना चालू हो जाएगा, लेकिन K2 को ओपन रखना है, इसका मतलब है करंट यहां से नहीं जाएगा। अब क्या होगा, जब करंट यहां से जाना चालू कर देगा तो करंट अपने आप थोड़ी देर में स्टेडी हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज नोन एज स्टेडी करंट। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, नाउ स्विच ऑन, इसको भी आप टैप करके बंद कर दो K2 को। इसका मतलब है अब जब स्टेडी करंट तो यहां से जा रहा है, नाउ दिस E1 is now also going in the circuit, right? Now since this E1 will also start going in the circuit through this particular resistance R, अब क्या होना चालू हो जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है, दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, आप इसको AB वायर पे टच करा सकते हो। तो जैसे अपन ने मीटर ब्रिज में किया था या व्हीटस्टोन ब्रिज में, गैल्वेनोमीटर को मूव करा दे रहना AB पर। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा से AJ, इस AJ पॉइंट पर आपको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई देने वाला है। ये एक्चुअली में दिस इज नॉट गैल्वेनोमीटर, दिस इज एन एमीटर, इसलिए इसको ए से शो किया था। खैर, सो एमीटर इज यूज्ड टू नथिंग एल्स बट इज टू चेक दैट हाउ मच करंट इज गोइंग इन द सर्किट। एंड यहां से आपने जब इस स्विच को बंद किया तो आपने इस जॉकी को यहां से मूव कराया, तो कॉमन सेंस एक किसी भी जगह पर J पॉइंट पर से आपका नल पॉइंट आ जाएगा, बैलेंस पॉइंट, यू नो व्हाई। सो गाइस रिमेंबर दैट जरूरी नहीं है J यहां पर आए, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब क्या होगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा नल पॉइंट आ गया? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। When galvanometer will not be deflecting, second step, that means that you have got your J as the null point. अब ये जो AJ होगा इसको आप L मान लेना। What is L? That is the length of that particular section. Now let's come on to the part of derivation. You know that V is equals to KL. ये कहां से आया? V is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो KL ही आएगा। AJ is equals to L, that I have already told you. AB is equals to कैपिटल L, A से B तक का जो पूरा है वो L है, वायर कैपिटल L, और ये एक सेक्शन है वायर का। We know that current flowing in this conductor I should be equals to, जब भी आप इस सर्किट को बंद करोगे पूरे के पूरा करंट कितना जा रहा होगा? E upon R plus R. What is R? The internal resistance of the battery. And what is capital R? The external resistance connected across this wire. Okay. So आपने ले लिया I is equals to E upon R plus R, right? If I is equals to E upon R plus R, then आपको अब ये भी मालूम है ऑलरेडी, K is equals to I R by L। अब ये कहां से आ गया सर? आप ही ने तो बोला था ना V is equals to I into R। ध्यान रखना E जब भी अपन लेते हैं कैपिटल E which is the EMF source, तो उसके अंदर पोटेंशियल पूरे सर्किट में जा रहा होता है, that is IR प्लस IR में जा रहा होता है। जब भी कभी आप V लेते हो विच इज द पोटेंशियल जो E1 की वजह से आ रहा है, उस केस में कहां पर जा रहा होगा? केवल IR वाले पार्ट में। रिमेंबर दिस, ओके? सो नाउ I should be equals to E upon R plus R. I should be equals to what? E upon R plus R आ गया आपके पास में। अरे I को कॉमन निकालोगे तो R plus R आएगा, R plus R को डिवाइड कर दो, तो E upon R plus R should be equals to I. E upon R plus R should be equals to I. ये आ गया। KL is equals to IR, but KL तो अभी आपने V बोला था, राइट? सो इसका मतलब है KL के जगह पर V डाल सकता हूं, करेक्ट? तो मैंने K के जगह पर मैंने डाल दिया V by L, और V के जगह पर क्या डाल दिया? IR। गॉट इट? तो ये आ गया मेरे पास। Now K should be equals to IR upon L, which is what? The resistance. K should be equals to, K कितना आ जाएगा आपके पास में? K should be equals to, अब आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम था, that is K, ये यहीं पर आया, I के जगह पर आपने क्या डाल दिया? E upon R plus R। E upon R plus R, ये आ चुका।
अब यहां पर था आपके पास में I के जगह पर E अपॉन R प्लस R, R पहले से ही था एंड L वाला पार्ट भी यहां पर ही था, राइट? तो ये आ चुका है मेरे पास में, करेक्ट? सो I के जगह पर ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया और R के जगह पर R है, L के जगह पर L। डन, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अब आपने केवल ये वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, V इक्वल्स टू के एल वाले पार्ट में। तो V की जगह पर V, K के जगह पर पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, E इंटू स्मॉल r अपॉन R प्लस R इंटू L इंटू स्मॉल l। स्मॉल l पहले से था। Now this means that if I need to calculate the potential difference across the length of any conductor, then that potential difference will be equals to EMF of the cell upon R plus R total resistance into the small resistance upon the total length into the length of the section। तो यदि ये सारी की सारी चीजें आपके पास में होंगी तो आप फाइंड कर सकते हैं। सो सर एक्चुअली में हम पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, आप केवल ये देखते हो कि इस जगह पर पोटेंशियल कितना है और इस जगह कितना है। सर लेकिन दोनों में सेम होगा ना, वायर की लेंथ है, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल कम होना चालू हो जाएगा। सो सिंपल, ये आ गया, राइट? लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। नाउ ये तो हो गया, अब मुझे कंपेयर करना है ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। कैसे करूंगा अब मैं, इन्होंने मुझे बोला है मुझे दो सेल चाहिए होंगे और मान लो मुझे दोनों सेल का ईएमएफ चेक करना है, कंपेयर करना है। तो क्या करूंगा, वेरी सिंपल, लेट्स चेंज दिस डायग्राम। सो आई एम जस्ट चेंजिंग अ बिट ऑफ दिस डायग्राम। सो इस बार मैंने यहां पर एक सेल ले लिया से E1 एंड मैंने यहां पर एक और सेल ले लिया से E2। लेट अस से ये है मेरे पास में पॉइंट 1 एंड दिस इज माय पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 3। करूंगा क्या, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू पुट दिस की K1 ओपन, और जो भी यहां पर से आपके पास में की डाल देना बीच में कहीं पर भी। ये वाली जो की है यहां पर इस वाले को मैं ओपन रखूंगा और इस वाले को क्लोज कर दूंगा। क्यों, बिकॉज आई वॉन्ट दिस बैटरी टू सप्लाई द स्टेडी करंट इन द सर्किट। डन, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब उसके बाद में जब ये वाला पार्ट हो गया है, अब मैं पहले इसको इससे टच कराऊंगा E1 से। जब मैं इसको E1 से टच कराऊंगा और जॉकी को जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो जॉकी मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर से मान लो J1 पे इसने मुझे एक रीडिंग दे दिया नल डिफ्लेक्शन का। ओके, अब मैं दोबारा से स्विच को बंद करूंगा। बंद करने के बाद में अब मैं इस 3 वाले वायर को 1 से हटा दूंगा और 2 पर डाल दूंगा। जब मैं 2 से डालूंगा तो इस वाले से ईएमएफ जाएगा। कॉमन सेंस यदि दोनों के दोनों सेल्स अलग अलग होंगे सो दैट मींस द रीडिंग विल बी समवेयर J2। यहां पर भी आ सकती है, हो सकता है वो यहां पर भी आ जाए, बट J1 पर तो नहीं आने वाली। इसका मतलब मेरे पास में 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं, AJ1 और AJ2। दैट मींस AJ1 को मैंने यदि L1 मान लिया तो AJ2 को क्या मानूंगा, L2। हो गया गाइस डेरिवेशन। We know that EMF E1 is directly proportional to L1। क्यों, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला ही है। E1 is directly proportional to L1। जितना ज्यादा आप लेंथ मेजर करोगे उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल पर यूनिट ड्रॉप आना चालू हो जाएगा। E2 is directly proportional to L2। So that means यदि मुझे कंपैरिजन करना है सेल्स का तो कैसे करूंगा, E1 by A2 should be equals to what, AJ1 upon AJ2 और L1 upon L2। That's all done। तो नाउ यदि आपको एक सेल का भी आपको EMF मालूम है और L1 और L2 मालूम है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द A2 ऑफ द सेकेंड सेल। गॉट इट? तो ये भी हो गया आपके पास। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। तो ध्यान रखना मैंने ये वाला डायग्राम चेंज किया था इसके लिए, सो यू कैन कॉपी दिस डायग्राम डाउन और यू कैन सी दैट बुक आल्सो।
फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एक और काम होता है, दैट इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके लिए आप सर्किट में क्या चेंज करते हो, एक्चुअली में कुछ खास नहीं। सो लेट्स सी, ये वाला पार्ट यही रहेगा। सो दिस देयर वुड बी व्हाट, यहां पर आ जाएगा आपके पास में E1, ये रहा वो की K2, करेक्ट। एंड यहां से आप क्या कर दोगे, एंड दिस इज योर व्हाट, दैट स्मॉल रेजिस्टेंस R। गॉट इट? सो दिस इज नथिंग एल्स, मतलब आपने E से आप एक सर्किट पर लेकर के जा रहे हो, मान लो ये आपने R ले लिया, कुछ यहाँ का ही रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बोल दिया R। सो दिस इज दैट पार्ट, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे तो रिमेंबर जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है ड्राइविंग और ऑक्सिलरी बैटरी का, वो हमेशा A से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड द नेगेटिव टर्मिनल शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द एमीटर, बिकॉज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, पैरेलल में नहीं कनेक्ट होता, ध्यान रखना। ओके ना, यदि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एज यूजुअल वही घिसा पिटा काम। यदि मैं टोटल ईएमएफ लूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज IR प्लस IR, वाइल केवल यदि पोटेंशियल ड्रॉप लूंगा तो इट शुड ओनली बी अगेंस्ट दिस IR वाला पार्ट। खत्म करते हैं। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। E शुड बी इक्वल्स टू KL1। कहां से आया, जब आप E लोगे तो कॉमन सेंस है। अब की बार इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इस बार पहले आप K1 की को क्लोज करोगे एंड आप इस सर्किट में स्टेडी करंट को पास करना चालू कर दोगे थ्रू दिस डाइवर सर्किट, राइट। अब K2 को अभी बंद मत करना, K2 को ऐसे ही रहने देना। अब क्या करोगे, सिंपल, अभी इस वायर को, जबकि अभी तो ये ओपन ही है आपका, अभी इस पर्टिकुलर जॉकी को मूव कराना चालू कर देना एंड जॉकी की कहीं ना कहीं एक नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग आ जाएगी। सो वो रीडिंग ले लिया। सो इवन मेरे पास में L1 वाला पार्ट आ गया, KL1, जहां पर भी रीडिंग आ रही होगी, सो J1 पे रीडिंग आ रही है, राइट। सो ये आ गया KL1। अब इस टैब को बंद करोगे तो कॉमन सेंस से रीडिंग कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज अब की बार सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस भी आ चुका है। अब जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट सिंपली मीन्स दैट नाउ दिस वुड बी शोइंग एज KL2, जो AJ2, अब वो आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। तो E should be equals to KL1 while V should be equals to KL2। आपको ऑलरेडी मालूम है E1 by E2 should be equals to L1 by L2, तो E by V should be equals to KL1 by KL2, K से K कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, E by V should be equals to L1 by L2। ऐसे ही छोड़ देना है इसको। अब क्या करोगे इसके बाद में, E के जगह पर आपने क्या डाल दिया, IR प्लस IR, ये देखो, और V के जगह पर क्या डाल दिया, IR should be equals to L1 by L2। कोई चेंज नहीं किया गाइस, बार बार फॉर्मूले में सेम ही काम करना है आपको। ये भी हो गया। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वेरी सिंपल, टेक आउट I कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर और उसको इसे डिडक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस R अपॉन R should be equals to L1 by L2। ये भी हो गया। और अब की बार यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी है तो अभी आपने क्या करा, इस R प्लस R को यहीं छोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, R L1 by L2, करेक्ट, माइनस R, ये वाला R वहां चला जाएगा। क्यों, यदि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेल का, तो ये भी आ गया। नाउ व्हाट, R शुड बी इक्वल्स टू R, यदि मैंने कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1। मैंने वो वाला स्टेप लिखा नहीं है, आप चाहो तो ये वायर, सो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, R ब्रैकेट आउटसाइड, तो अंदर क्या बचेगा, L1 बाय L2 माइनस 1। अब मैंने इसी का LCM निकाला तो क्या आएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2, एंड दैट्स ऑल, दैट इज बाय द वे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। गॉट इट? सो वंस अगेन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर? Potentiometer का basic advantage है that it will be giving you the highest accuracy if you want to calculate the EMF or potential difference across a circuit. Second, why is that so? Because it does not draw any current. Third, what is potentiometer also called as? Potentiometer is also called as an ideal voltmeter because it does not draw current. What is the amount of resistance in potentiometer?
पोटेंशियोमीटर विल बी, यदि वो आइडियल पोटेंशियोमीटर हुआ तो टेक्निकली इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का बना नहीं सकते. दैट इज दिस पार्ट. Correct. What are the disadvantages of potentiometer? Of course, guys, first of all, it's a bit more slow in operation, थोड़ा slow है as compared to voltmeter से. So बस एक वही disadvantage है आपका guys, कैरी करने में जो लगेगा आपको टाइम बल्कि होता है. It's not a device, क्योंकि एक बड़े से बॉक्स के ऊपर में ग्रेजुएटेड स्केल लगी होती है. जैसे मीटर ब्रिज होता है वैसे ही गाइस, जितना लंबा वायर उतनी हाई सेंसिटिविटी. ध्यान रखना गाइस, नल डिफ्लेक्शन मेथड है. दैट मींस यदि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आएगी, दैट शोज दैट करंट विल नॉट बी गेटिंग यूज्ड इन दिस सर्किट. सो दिस टेक्निकली completes now your current electricity. Now only the numericals are being left out. Thank you guys so much once again for being with me. From tomorrow we will be doing for around 2 days certain numericals for capacitance and this and the other ones also. Okay, and then we will be starting magnetic effect and the magnetism. Both of them are very very simple topic. बहुत simple है, कुछ नहीं करना उसके अंदर. So chill and relax guys. Okay, see ya. Bye. Enjoy.